नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं रसि ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवतीत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। गुजराती वांची सकूं छूं, मारा गुजराती एटलू सरस नहीं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक संख्या 24। तपशौचं दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः। अधर्मांस शैस्त्रयो भग्नस स्मय्य संगम दैस्तव। तपशौचं दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः। अधर्मांशैस्त्रयो भग्नास स्मय्य संगम दैस्तव। पदपातः तपः तप शौचम शुद्धि दया सत्यम सत्य इति एम पादाः पग कृत सत्ययुग्मा कृताः स्थापितया हता। अधर्म अंशैः आंशोथि त्रयः ट्रन भग्नाः बांगेला स्मय गर्भ संग वदारे पड़तो स्त्री संग मदैः नशो तव तमारु। अनुवाद आने भावार्थ प्रभुपाद जी महाराज द्वारा। सत्ययुग में तप शुद्धि दया અને સત્યના 4 સિદ્ધાંતો વડે તમારા 4 પગ સ્થાપિત થયેલા હતા। પણ એમ દેખાય છે કે ગર્વ સ્ત્રી સંગ અને નશાખોરી એ ત્રણના રૂપમાં દેખાતા વ્યાપક અધર્મને લીધે તમારા 3 પગ નષ્ટ થઈ ગયા છે। अच्छा, कलीना सजा आने बदलो आ अध्यायना शीर्षक छे। भावार्थ चालशे? मारा गुजराती चाले छे बालको जेवी। जीव जेटला प्रमाण में मायाना आकर्षण ने वश थाय छे
તેટલા પ્રમાણમાં માયા જીવ ઉપર પ્રભાવ પડે છે. પતંગિયા પ્રકાશના અંજી દેતા તેજથી ખેંચાય છે અને તેથી તે અગ્નિનો શિકાર બને છે. તેવી રીતે ભ્રામિક માયા જીવનને બ્રહ્મના અગ્નિનો શિકાર થવા માટે હંમેશા ખેંચે છે અને બ્રહ્મને વશ ન થવા બલકે તેમથી મુક્ત થવા માટે વેદો જીવનને સાવધાન કરે છે. વેદો આપણને તમસના અંધકારમાં નહીં જવા પણ પ્રકાશના પ્રગતિશીલ માર્ગે જવા માટે ચેતવે છે. ભગવાન પોતે પણ ચેતવાની આપે છે કે માયાની ભ્રામિક શક્તિને જીવી અતિશય કઠિન છે, પણ જે ભગવાનની પૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારે છે તે સહેલાઈથી તેને જીતી શકે છે. પણ ભગવાનના ચરણ કમલમાં શરણ જવું તે પણ ઘણું સહેલું નથી. તપ, શુદ્ધિ, દયા અને સત્યવાળી વ્યક્તિઓ માટે આવી શરણાગતિ શકાય છે. વિકસિત સંસ્કૃતિના આ 4 સિદ્ધાંતનો સતયુગના વિશિષ્ટ લક્ષણો હતા. એ યુગમાં દરેક મનુષ્ય ખરી રીતે શ્રેષ્ઠ કક્ષાનો બ્રાહ્મણ હતો અને જીવનની આશ્રય વ્યવસ્થામાં તે 100 પરમહંસો એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમની સર્વોત્તમ કક્ષાએ હતા. સાંસ્કૃતિક સ્થિતિથી મનુષ્યો માયાને આધીન ન હતા. આવા પ્રબલ ચરિત્રવાળા મનુષ્યો માયાના ફંદામાંથી છૂટી જવા જેટલા સક્ષમ હતા, પરંતુ ધીરે ધીરે તપ, શુદ્ધિ, દયા અને સત્ય જેવા બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો ગર્વ, સ્ત્રી સંગ અને નશાખોરીનો જે પ્રમાણે વિકાસ થતો ગયો તે પ્રમાણમાં નબળા પડતા ગયા અને મુક્તિનો માર્ગ માનવ સમાજથી દૂર સરકી ગયો. કલિયુગના વિકાસની સાથે સાથે લોકો અભિમાની સ્ત્રીઓ પ્રત્યે આસક્ત અને નશાખોર થતા જાય છે. કલિયુગના પ્રભાવે કરીને એક મુફલીસ માણસ પણ પોતાની ભાઈનું અભિમાન કરે છે. પોતાની ભાઈ गरीब आदमी अपने एक पैसे से घर पर रखते. गुजराती बहुत कमजोर છે, ક્ષમા કરજો, બહુ દુઃખની વાત છે. 43 વર્ષ થઈ ગયો અહીંયા. પ્રયત્ન કરું છું. અચ્છા, પુરુષના મન સે વશ કરવા માટે સ્ત્રીઓ વિશેષ રૂપે આકર્ષણ વસ્ત્રો પરિધાન કરે છે અને માણસનો મદપાન, ધૂમ્રપાન, ચા પીવી અને તમાકુ ખાવી વગેરે વ્યસનની બનતા જાય છે. આ બધી કુટેવો અથવા સંસ્કૃતિનો કહેવાતો વિકાસ બધા અધર્મના મૂળ કારણો છે અને તેથી ભ્રષ્ટાચાર, રૂશ્વત અને સગવડને
અટકાવવાનું શકાય નથી. માત્ર કાયદા અને પોલીસની દેખરેખથી માણસ આ બધા અનિષ્ટોને અટકાવી શકે નથી. પણ યોગ્ય દબાવથી એટલે કે તપ, શુદ્ધિ, દયા અને સત્યના સિદ્ધાંતોથી તે મનથી બીમારીને દૂર કરી શકે છે. આધુનિક સંસ્કૃતિ અને આર્થિક વિકાસ ગરીબી અને અછતની એક નવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે. તેના પરિણામે વપરાશી માલના કાળા બજાર થાય છે. જો નેતાઓ અને સમાજના ધનિકો તેમના અડધા સંચિત ધનનો ગેરમાર્ગે દોડાયેલી જનતા માટે દયા લાવીને ઉપયોગ કરે અને તેમની ભગવદ ભાવનાનું શ્રીમદ ભાગવતમનું શિક્ષણ આપે તો બધા જીવનનો બંધનમાં નાખવાના તેના પ્રયાસમાં કલિયુગનો અવશ્ય પરાભવ થાય. આપણે હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે ખોટું અભિમાન અથવા જીવનના મૂલ્યોનો પોતાનો અતિશય ઊંચો અંદાજ, સ્ત્રીઓ તરફથી ખોટી આસક્તિ કે તેમને સંગ અને નશાખોરી મનુષ્ય સંસ્કૃતિને શાંતિના માર્ગેથી દૂર થઈ જશે. પછી દુનિયામાં શાંતિ માટે લોકો ભલે ન ગમે તેટલી ભૂમો પડતા હોય. ભાગવતમના સિદ્ધાંતોનો ઉપદેશ આપવામાંથી લોકો આપે મેલે અંતર્બાહ્ય શુદ્ધિ, દુઃખી પ્રત્યે દયાળુ અને રોજના વર્તમાનમાં સત્યશીલ બનશે. માનવ સમાજના દોષોને સુધારવાનો આ રસ્તો છે. આ દોષો વર્તમાન સમયમાં ખૂબ પ્રબળ બનતા દેખાય છે. હરે કૃષ્ણ. ગુજરાતીમાં પ્રયાસ કરું. અહીંયા બધા ગુજરાતી છે कि બીજા कोई છે? हिंदी वाला है या कौन हिंदी वाला है? अच्छा, तो फिर हिंदी में बोलना चाहिए. मेरा ज़्यादा अभ्यास है हिंदी में. गुजराती ये भूल गलती है, लेकिन क्या करें. प्रांतीय भाषा गुजराती. हिंदी सब हिंदी समझते हैं. कल रात को गुजराती में प्रवचन दिया, लेकिन बालकों जैसे भाषा गुजराती, छोटे छोटे बच्चे जैसे. हाँ, अंग्रेजी का अभ्यास नहीं है. 10 मिनट गुजराती में પછી हिंदी बोलो. संस्कृतेन प्रवचनं दातुम् इच्छामि, किन्तु जनाः भारते श्रवणाभ्यासः न कृतवन्तः. तदर्थं यदि प्रवचनं संस्कृत दातुं शक्नोमि तत्र रुचिः अधिका भवति. मम मनसि संस्कृतभाषायां रुचिः, आसक्तिः अधिकं भवति, किन्तु सामान्यजनानां भारतीयानां मध्ये श्रवणाभ्यासः नास्ति. तदर्थं प्रायः हिंदी भाषायां प्रवचनं ददामि. अन्यथा अस्य देशस्य किं भागवतस्य, श्रीमद्भागवतस्य भाषा संस्कृतभाषा. महाभारतस्य भाषा संस्कृतभाषा. भगवद्गीता महाभारतस्य अंगः. वेदांगानि षडंगाः, षड्दर्शनाः, धर्मशास्त्राः, आयुर्वेद ग्रंथाः सर्वे संस्कृत भाषायाम्. आयुर्वेदिक चिकित्सकाः सर्वे संस्कृत ग्रंथानां द्रष्टव्यः. जनानां रोग दूरीकरणाय
संस्कृत ग्रंथाः एव द्रष्टव्यः। अस्य देशस्य बुद्धिः नष्टं जातं भागवतस्य कथनं प्रयेण अल्पायुषः सव्य खलो अस्मिन् युगे जन मन्दसुमन्दमतयः बुद्धिः अल्पो जातः तदर्थं स्थानीयभाषाः उत्पन्न जातः भूतकाले वर्तमान काले अपि भाषा परिवर्तनमपि महान् सञ्जातः। गुर्जर भाषा अर्ध आंग्ल भाषा संजातः। अनेके आंग्ल शब्द प्रयोगः कुर्वन्ति गुर्जर भाषायां हिंदी भाषायामपि। हरे कृष्ण। गुजराती प्रयत्न करी सकूँ છું। ગાયકા રાતમાં ગુજરાતીમાં આખા પ્રવચન કેટલી 45 મિનિટ સુધી हाँ हिंदी क्षमा करजो प्रभु। हमारे संस्था में कोई लोग बोलते हैं काल का परिवर्तन हो गया। भागवत में ये भी सत्य है ना, कलियुग अलग काल है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। एक प्रवचन में प्रभुपाद जी महाराज ने कहा कि परोक्ष भूतकाल में जन्म मृत्यु जरा व्याधि था और अभी भी है। आयु लंबी थी लेकिन अभी आयु कम हो गया। अभी कोई 40 साल तक भी प्रभु जी का कोई परिचित व्यक्ति 2-3 दिन पहले राजकोट में देह त्याग किया। डेंगू, हमारा डेंगू हो गया अभी पिछले हफ्ता। खून का परीक्षा सकारात्मक परीक्षा आया डेंगू, लेकिन भाग्य की बात है कि खून के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको दशमलव, उसका खून के गिनती में प्लेटलेट बोलते हैं अंग्रेजी भाषा, वो मेरा नहीं घटा। भाग्य की बात है, मालूम नहीं क्यों। 4-5 हमारे भक्त हॉस्पिटल में दाखिल, चिकित्सालय में दाखिल किया हॉस्पिटल। कल यही प्रवचन का विषय था, गुजराती प्रवचन। गुजराती शब्द गया दूर, हिंदी शब्द गया दूर, अंग्रेजी शब्द। 4-5 का इलाज, एक वायु, शुद्ध वायु 1 हफ्ते तक देना पड़ा, बच गया। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रजापति ब्रह्म, पितामह ब्रह्म, पितामह बोलते हैं। बंगाल में पितामह नहीं बोलते हैं, प्रभुपाद पितामह शब्द का प्रयोग नहीं किया। स्मृति को संहिता बोलते हैं, मनुस्मृति, मनु संहिता, ऐसे एक ही अर्थ एक ही है। तो पितामह ब्रह्म का जीवन का अंत होते हैं, उनके 100 साल तक जीतते हैं, लेकिन उनके एक क्षण हमारे 6 महीना। यही ब्रह्म विमोहन लीला, श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 14, 10वां स्कंद अध्याय 14, 14वें अध्याय में ब्रह्मा कृष्ण भगवान के बाल लीला का निरीक्षण। वल्लभ संप्रदाय ये नहीं मानते, मालूम है? वल्लभ संप्रदाय ब्रह्म विमोहन लीला नहीं मानते। कैसे ब्रह्मा मोहित हो गया बोलते हैं, श्रीमद् भागवत में है। सभी आचार्यों ने स्वीकार किया, वल्लभ आचार्य स्वीकार नहीं किया। हरे कृष्ण। आपने ये कहानी सुना है? कौन ये कहानी सुन है? ब्रह्म विमोहन लीला 1, 2, 3, आधा से ज्यादा कोई नहीं सुना। कृष्ण भगवान बलराम ग्वाल बालों के साथ वन भोजन में बैठा था।
पितामह ब्रह्मा भगवान का अवतार है ना, रजोगुण का अवतार है। उन्होंने सृष्टि की गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सत्वगुण और महेश तमोगुण। क्योंकि सत्यानाश, विश्व का विनाश करते हैं। तो ब्रह्मा कृष्ण भगवान का लीला, वो विश्वास नहीं था कि ये विष्णु भगवान है। अच्छा, विष्णु और कृष्ण के बीच में अंतर है? नहीं है, लीला अलग है। एक परम पुरुषोत्तम परमेश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर अलग अलग लीला करते हैं, अलग विहार, लेकिन एक ही व्यक्ति। तो ब्रह्मा ने सुना भगवान का अवतार हो गया। अच्छा, अवतरती परम धाम गोलोक धाम से आते हैं। आज सुबह एक तात्पर्य, प्रभुपाद महाराज का तात्पर्य 3:21 कपिला अवतार के संबंध में प्रभुपाद ने उस तात्पर्य में लिखा है कि वैकुंठ से नहीं आया आत्मा। इसमें वाद विवाद होते हैं, मेरे और महाराज जी का मतभेद है इसमें। हाँ, मतभेद है, क्षमा कर जो। प्रभुपाद तात्पर्य ने लिखा है कि लगभग सभी जीव ब्रह्म ज्योति से आते हैं, पर तात्पर्य में वैकुंठ से नहीं आया। यद गत्वा न निवर्तन्ते, मैंने नहीं बोला, कौन बोला? यद गत्वा न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। परम धाम में जो जाते हैं लौट नहीं आते हैं। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। तात्पर्य में भी रुचिकर है कि ब्रह्म ज्योति से आ जाते हैं सारे जीव भौतिक। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, जीव तो सनातन है। ममायवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। कहाँ है जीव? वैकुंठ में था कि ब्रह्म ज्योति में था? भगवान के शरीर में। प्रभुपाद क्या कहा कि अनंत काल में विस्मरण हो गया, कहाँ से आया हम। अच्छा, ब्रह्मा सृष्टि किया, सृष्टिकर्ता। विष्णु का अवतार, विष्णु के नाभि से पद्मनाभ, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हो गया। दूसरे स्कंद में उसका वर्णन है भागवत में। अच्छा, आया गोप बालक और कृष्ण का लीला देखकर चातुरी का एक योजना बनाया। मैं परीक्षा करूंगा, देख लूंगा कि ये ईश्वर है कि नहीं। उन्होंने सारे गोप बालक और बछड़ा छुड़ा लिया। ये ब्रह्म विमोहन लीला का कथा है। अच्छा, कृष्ण भगवान क्या किया? उन्होंने अपने योग शक्ति, ना हम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः। योगमाया का अर्थ है अंतरंगा शक्ति, और बहिरंगा शक्ति का पूजा चल रहा है अभी। दुर्गा देवी नवरात्रि, जो उत्तर भारत में नवदुर्गा बोलते हैं और बंगाल में दुर्गा पूजा, करोड़ों के रुपये की पंडाल बनाते हैं कलकत्ता में। मैं 2-3 साल पहले, ये महामारी के पहले, मायापुर जाना पड़ा गोष्ठी। मायापुर प्रशासनिक समिति के सदस्य आपका दास हूँ। दुर्गा पूजा के काल में, लेकिन कलकत्ता के अंदर भ्रमण नहीं किया। विमान स्थान से सीधा मायापुर, रास्ते में पंडाल देखा, लेकिन बड़ी बड़ी पंडाल के बारे में फोटो और
सुन लिया। दुर्गा देवी का उपासना भी दशम स्कंद कृष्ण का जन्म के काल में दुर्गा का प्रकृति हो गया, और कंस उसको मारने के लिए, आपको जानते हैं, उठा लिया। तो उनके हाथ से छूटकर ऊपर जाके बोला कि तुम्हारा मारने वाला का जन्म हो चुके हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, मूर्ख। मूर्ख कंस। तो ब्रह्मा ने छुड़ा लिया और एक क्षण वापस आया, लेकिन वो एक क्षण एक हमारे एक साल बीत गया। सारे बछड़े और सारे बालक अपना अपना अलग स्वरूप, अपना अपना घर, अपना अपना माता के पास, कोई समझ नहीं सकते थे। ज्यादा प्रेम आ गया विपरीत रूप में, कि क्योंकि सब कृष्ण भक्त थे। ब्रह्म विमोहन लीला, कैसे ब्रह्म विमोहन लीला में आया? अभी ये यहाँ से लंबी आयु, इसलिए पहुंच गया। सत्य युग में 1 लाख साल तक लोग रहते थे। स्त्री संगी नंबर 1 कौन है? लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान। आपके भगवान व्यापी जा रही है, ईसाई लोग बोलते हैं। लेकिन कृष्ण से ज्यादा पत्नियां किसकी थी? आप सब जानते हैं, आप पढ़ते हैं। कल यही संदेश था, पढ़ो। पुस्तक वितरण कर रहे हैं, लेकिन पुस्तक के अंदर क्या है? भागवत। इसलिए प्रभुपाद जी महाराज भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और भक्ति वेदांत उपाधि पाठ्यक्रम के लिए आदेश दिया कि भागवत पढ़ो। क्या है भागवत में? चित्रकेतु 1 करोड़ पत्नियां थी, कैसे भोग सकते? संतान उत्पत्ति स्त्री पुरुष संबंध से होते हैं। हम सब गृहस्थ है यहाँ, महाराज जी नहीं है आज। आदि शंकराचार्य का कहानी भी आपको मालूम है। आदि शंकराचार्य के बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं लगभग, पर आदि शंकराचार्य का जीवन कथा का नाम शंकर दिग्विजय। शंकर दिग्विजय, और शंकर भगवान के अवतार हम मानते हैं। तो उन्होंने शास्त्रार्थ करके करके एक से एक पंडित अपना अनुयायी बनाया, और जब अनुयायी बन गया संन्यास लेना पड़ा। तो एक गृहस्थ था यहाँ नर्मदा किनारे, गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश। वो काल में ना गुजरात न मध्य प्रदेश, भारत, महिष्मती प्रसिद्ध नगर अभी नहीं रहा गया। मंदन मिश्र करके महा विद्वान पंडित, स्मार्त ब्राह्मण, शंकर का उपासना करते थे कि नहीं ये अस्पष्ट है, पर आदि शंकराचार्य चालू किया पंचोपासना। तो उन्होंने परास्त कर दिया, लेकिन उनकी पत्नी विदुषी भारती, शायद भारती देवी, आपने मेरी पति को परास्त किया, अभी मेरे साथ वाद विवाद करना काम शास्त्र के विषय में, मतलब सन्यासी, बाल सन्यासी काम शास्त्र के कैसे वाद विवाद कर सकते हैं? क्या है मीमांसा शास्त्र? मंदन मिश्र मीमांसा शास्त्र, षड दर्शन में से एक मीमांसा दर्शन, उसका प्रकांड विद्वान था। तो आदि शंकराचार्य ने क्या कहा कि मुझे कुछ खाल दीजिए। काम शास्त्र वो तो वेद में नहीं है ना, वो भौतिक ज्ञान है, आयुर्वेद की तरह। धनुर्वेद, युद्ध कला, उसको वेद विद्या कोई बोलते हैं, कोई
वत्स्यायन काम सूत्र प्रभुपाद ने कहा कि बदमाश है। ये कहानी है कि उन्होंने जाके देह छोड़ दिया। योग पद्धति के द्वारा योग शक्ति अपने आत्मा को अपने शरीर छोड़ के एक मरा हुआ राजा के शरीर में प्रवेश किया। अमरदेव बंगाल में राजा था और राजा तक का काम है भोग। तो राजा का मंत्री ने देखा कि ये मर गया और वापस जीवित कैसे हो गया, और मंत्रियों ने देखा कि ये अलग जैसे व्यक्ति है और अच्छा काम कर रहा था शासन में। तो वो लोग ने समझा कि ये कोई योगी है जो उन्होंने अपना देह कोई जगह में रखकर इनके देह में प्रवेश किया। यही कहानी है। फिर उन्होंने अमरदेव का शरीर छोड़ के अपना शरीर में जब प्रवेश किया, वो लोग निकट था और उनका शरीर को जलाना था ताकि वापस प्रवेश नहीं कर पाया। तो लौट आया महिष्मती और भारती देवी ने नहीं कोई वाद विवाद करना जरूरत नहीं, आप जीत गया, और उसकी पति ने संन्यास आश्रम ग्रहण किया। तो 1 करोड़ पत्नियां कैसे भोगेंगे 100 साल के अंदर? असंभव है। 1 लाख वर्ष के जीवन था भागवत के अनुसार। ये भागवत कथा है चित्रकेतु। 1 लाख वर्ष, 1 लाख वर्ष तक जीते रहा। और एनीवे कहानी अलग है। चित्रकेतु तो कृष्ण भगवान 16,108 रानी, एनीवे 1 साल तक लौट आया देखने के लिए ब्रह्मा, और उन्होंने देखा कि सब बालक और गाय है, मैंने ले लिया। ये कैसे? क्षण बीत गया उनके जीवन। उनके आयु 1 लाख साल नहीं है। जब तक ये ब्रह्मांड चलेगा तब तक ब्रह्मा जी का जीवन। सहस्र युग पर्यंतम, गीता का वाक्य है ना, 1000 युग। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग लंबी है। एक दिन रात्रि अंते सहस्रंतम, याद नहीं आ रहे हैं। 1000 युग उनके रात है। ब्रह्मा का 24 घंटा 2000 युग। तो हम उनके जीवन कितना लंबी है, सनातन जैसे है लेकिन सनातन नहीं है। आप ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्ति अर्जुना। ब्रह्म लोक तक कोई कल प्रश्न एक है, बॉम्बे में गुजराती है बानिया गोलोक दास, मालूम नहीं किससे दीक्षा लिया, जुहू मंदिर का सत्संगी है। तो वो प्रश्न भेजा कि ब्रह्मलोक भौतिक संसार में है कि वैकुंठ में है? तो जवाब है भौतिक संसार में है। आप ब्रह्मा भुवनालोक का भूल गया, मैंने खाली लिखते हैं भौतिक संसार में है, वैकुंठ में नहीं है। ब्रह्म भौतिक संसार सृष्टिकर्ता, गुण अवतार, रजोगुण। काल काफी बीत गया, वंशीधारी प्रभु नहीं आया। आप जरा पूछ सकते क्या हो रहा है? अच्छा, तो आज के तात्पर्य में अधर्म ज्यादा हो गया। मुझे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। सब अपने अपने लड़की अकेला छोड़ रहे हैं, क्षमा कर दो, आप अकेला नहीं है प्रभु। अधर्म है, क्या करें? अभी विवाह, प्रभुपाद 16 अध्याय 7वां श्लोकों के तात्पर्य उन्होंने कहा कि आधुनिक काल स्त्रीत्व का जो परिस्थिति है वो अहंकार पूर्ण है। क्या है? करियर बनाएंगे, अकेला रहेंगे, आत्मनिर्भर रहेगा,
ये सारे बेटियों को यही शिक्षण आधुनिक शैक्षणिक पद्धति दे रहे हैं, पुराना पद्धति नहीं था। और भागवत में पति देवता है, पति का सेवा, यही शिक्षण है। और पहले वैवाहिक क्या नाम है, विज्ञापन, जाहेरत, गुजराती भाषा जाहेरत, गृह कार्य दक्ष, गृह कार्य दक्ष। अभी गृह कार्य दक्ष नहीं चलेगा। MA BA PhD, PhD कब मिलते? 30-35 साल की उम्र में बच्चा होते हैं। पाकिस्तान बन जाएंगे, बनने वाले हैं। अभी क्या हुआ केरल में, कितना NIA के जो रेड हुआ, PFI गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना है। प्रभुपाद ने भी इसके विषय में चर्चा किया। प्रभुपाद ने क्या कहा, जो मुसलमानों को मुसलमानों के बीच में जो प्रचार करेंगे, अरबियों के बीच में खास करके, मैं उनके चरण का धूल मेरे सिर पर रखूंगा। प्रभुपाद ने भी यही कहा। हिंदुस्तान पाकिस्तान, प्रभुपाद के जीवन में उन्होंने ये 2 भाई गर्ग मुनि ब्रह्मानंद पाकिस्तान में युद्ध के काल में भेजा प्रचार के। फिर बाद में चिंतित हो गया, युद्ध आरंभ हो गया, वो सुरक्षित रहेंगे कि नहीं। पाकिस्तान में इस्कान है, काफी प्रचार चलते हिंदुओं के बीच में, मुसलमानों के बीच में कम। ईरान में था, फिर ये मुसलमान सरकार, अभी बहुत बड़ा विरोध चलते हैं ना, अपने समाचार में देख लिया होगा। सरकार का विरोध है, खत्तर इस्लामवादी का शासन है ईरान में। शिया सुन्नी के ऊपर नफरत है, सुन्नी शिया के लिए नफरत रखते हैं। हरे कृष्ण। कलियुगी धर्म अधर्म, पर अधर्म इतना फैल गया। ये महानगर जीवन पापाचार है। नंदग्राम सात्विक है, नंदग्राम सात्विक है। प्रभुपाद जी कहाँ के थे? कलकत्ता। और प्रभुपाद जी महाराज बोलते थे कलकत्ता नरक है। एक अभी उज्जैन में हम लगभग 1 महीना रहा, 26 दिन आयुर्वेदिक इलाज के लिए। वहाँ आयुर्वेदिक क्लिनिक है, केरल आयुर्वेदिक क्लिनिक, आरोग्य निकेतन। तो एक बंगाली भक्त कलकत्ता के थे, महाराज का शिष्य बन गए, भक्ति चारू महाराज। और महाराज ने बोला यहाँ रहो। तो एक दिन सुबह निकला मेरे साथ, यहाँ बहुत शांति है। कलकत्ता नरक है और उज्जैन छोटा नगर है, उसके अपेक्षा से तो शांति ही मिलेंगे ना। अधर्म ही धर्म ही अधर्म। जो शराब नहीं पीते वो मूर्ख है। जो चाय कॉफी तो सभी मंदिरों में मिलते हैं, खाली हमारे में नहीं मिलते। और हमारे भी कोई कोई जाके पीते हैं, कोई। जसोमती नंदन प्रभु कहानी बताते थे कि बॉम्बे में एक माता जी भक्त बन गया, मंदिर में रहने लगा। प्रभुपाद जी महाराज उपस्थित थे, तो उसको चाय का आदत छोड़ नहीं पाया। प्रभुपाद के पास आके पूछा, क्या करे, ये लोग मेरे को हैरान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने उसको कहा कि छुप के पियो, किसी को बोलना नहीं। हमारे वहाँ एक आपके गुरु भाई है ना लेकिन हर महीना लाख 2 लाख रुपया लाते हैं मंदिर में, मंगल आरती में कभी दिखाई नहीं देते हैं। गुरु पूजा में जब मूड में है आ जाते हैं। मंगल आरती उनका चाय का टाइम होता है। चाय का टाइम है। सूरत में भी काफी। हाँ, चाय क्या है प्रभु? विदेशी भक्त। एक देश का नाम फ्रांस, आपने सुना है? यूरोप में, यूके के बाजू में, और यूके द्वीप है,
और यूरोप में फ्रांस बड़ा देश है, वहाँ के लोगों का संस्कृति क्या है कि सुबह उठ के जरा सा दारू पीना, जरा सा दारू, खड़क शराब नहीं, विस्की वगैरह नहीं, दारू। तो एक हमारा भक्त, 7 विदेशी भक्त यूएसए के, 7 साल वृंदावन में रहा, 7 साल मायापुर। तो मायापुर में जब रह रहे थे स्वतंत्र रूप में, पूर्व पहले गृहस्थ था और वहाँ का अलग अलग 50% तो होते ही है। दुख की बात है, एक फ्रेंच भक्त के साथ रह रहे थे, तो वो फ्रेंच भक्त ने बोला कि जरा सा दारू पीने से कहाँ नियम भंग होते हैं। हरे कृष्णा, नियम भंग तो है ही, लेकिन चाय दारू जैसे नहीं है, ये भी एक बात है नशीली पदार्थ, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन दारू जैसे नहीं है। दारू 100% अपवित्र। क्या करें, सबको भगवान के सेवा में। अच्छा, प्रभुपाद भारत में उपदेश दिया, अगर मांसाहारी कोई हो उनके घर में भोजन नहीं करना, फल और दूध। ईरान में प्रभुपाद गया और उन्होंने उपदेश दिया, किसी के घर में खाओ शाकाहारी, लेकिन प्रचार करो अलग। यहाँ भारत में मुसलमानों के पानी भी नहीं पीते हैं हिंदू, अभी सब कुछ पी रहे हैं, खा रहे हैं। होटल का नाम है हिंदू और मालिक मुस्लिम और रसोइया मुस्लिम, और सब लोग खाते हैं बाजार में। पहले ही हम भी खाते थे जब प्रवास में था। मारवाड़ी होटल एक ब्राह्मण के घर था, और बालाजी मील्स होटल विजयवाड़ा में एक मारवाड़ी होटल, हमारा केंद्र नहीं था। ये तो 47 वर्ष पहले, 75 5 रुपया रोटी सब्जी मिठाई दही, 5 रुपये में जितना खाओ उतना। हम लोग गए थे ना उज्जैन, महाकाल दर्शन करने। महासुभेश्वर को सैनिटाइज कर रहे थे। महासुभेश्वर बोले क्या ये दारू से मैं हाथ धो के महाकाल के दर्शन करूं? नहीं, महाकाल नहीं, काल भैरव, काल भैरव मंदिर उज्जैन में ही, वहाँ दारू भगवान महाकाल में नहीं देते। नहीं सैनिटाइज नहीं किया ना, आप हाथ नहीं धोए ना, वो सैनिटाइज कर रहे थे उज्जैन, हम लोग साथ में थे ना। काल भैरव के दर्शन करने गए तो सिक्योरिटी वाला सैनिटाइज करा था हाथ। हाँ अच्छा, आप नहीं धोए ना सैनिटाइज, आपने कहा ये दारू से हाथ से, अच्छा हाँ वो ये हाथ, हाँ ये चलता, अल्कोहल से बनते हैं। अभी नहीं, उसके महामारी के काल में अभी आज किसी को आश्चर्य की बात है, मुंह में पत्ती नहीं लगाए, अभी भी लगा रहे हैं ना कोई। उज्जैन में एक महीने देखा, एक बुढ़ा बात नहीं हुई, 26 दिन में एक बार बात नहीं किया। उनके फ्लैट है वहाँ, विमान के चालक था और महाराज के शिष्य बन गया तो फ्लैट लिया। मंगल आरती में रोज न केवल पत्ती, उसके हाथ में मोजा। अभी हमने नहीं देखा, एक है नहीं, उम्र एकदम है, उम्र तो है 55 65 85 ऐसा नहीं। हरे कृष्ण, कलि युग में अधर्म कैसे परास्त कर सकते, ये प्रभुपाद ने 65 वर्ष पहले, 70 वर्ष पहले ये तात्पर्य लिख दिया। और अभी कोई शिष्य क्या बोलते हैं, प्रभुपाद ने जो लिखा है उसी काल के लिए, अभी काल का परिवर्तन हो गया, ये गलत बात है, ये गलत बात है। लेकिन PhD बनकर बोल रहे हैं, इसलिए प्रणाम, आप शिक्षित है, प्रणाम पत्र है, लेकिन वैदिक शैक्षणिक पद्धति का विरोध विचार है। क्या करें,
प्रभुपाद जी ने कहा कि ये उपदेश 10,000 साल तक के लिए है, तो उन्होंने खोटा बोला और उनके शिष्य स्वयं बोल रहे हैं ये चीज होते हैं। आपने फोन नहीं किया? आ रहे रास्ते में। अच्छा, रास्ते में। अभी क्या कुछ प्रसाद का वितरण होगा? अगर हम प्रसाद नहीं लेंगे तो भोजन का काल हो। वहाँ है भोजन गांव में, केशव श्याम सुंदर। हाँ, वहाँ जा रहे हैं, 1 घंटे का रास्ता है। हाँ 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 हाँ, वहाँ से बोले ब्रह्मज्योति साधे, तो जय विजय जो थे वो वैकुंठ में थे। हाँ, वैकुंठ के द्वार में था। ये एक व्याख्या है, और दूसरी व्याख्या भगवान कभी कभी भेजते हैं नित्य सिद्ध प्रचार करने के लिए, या लीला। एक्चुअली वो वास्तव में वो सब असुर बन गए, तो ये भगवान का इच्छा था। तो वो लोग इनके शरणागत थे तो असुर बन गया, दुख सहन करना पड़ते भगवान का आनंद के लिए। नित्य सिद्ध भक्त कभी कभी गौड़ गानोदेश दीपिका, ये सब नित्य सिद्ध का वर्णन है, हम समझते हैं। तो वो नित्य सिद्ध जब भौतिक संसार में, जैसे भीष्म पितामह देवता था और उसके पहले उनकी माँ गंगा देवी, एक से एक गंगा में फेंक दिया बच्चा। शांतनु क्रुद्ध हो गया, कैसे तुम कैसे हो? अरे आप पूछना नहीं था, अभी मैं तुमको छोड़ दूंगी। लेकिन ये सब देवता थे जिनका शपित होकर आया, वो अलग है, लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसके जैसे है, शपित होके आया। अच्छा, ये शपित होके नहीं आते भगवान। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगाष्ट्र पार्षदम, पार्षद नित्य पार्षद भी आ जाते हैं, लेकिन वो बद्ध जीव नहीं है, वो नित्य सिद्ध है। बट सामान्य बद्ध जीवों का नित्य सिद्ध परिस्थिति नहीं है। हम समझते हैं प्रभुपाद जी उत्तम भक्त, लेकिन हमारे गुरुजन उत्तम भक्त है कि नहीं? शिष्य तो देखना है, शिष्य तो देखना है। लेकिन हम देख रहे हैं विदेशी भक्त लोग, अगर कोई सिद्धांत जो प्रभुपाद के सिद्धांत का विरोध फैला रहे हैं, तो हम उसको उत्तम भक्त कैसे समझते हैं? मध्यम भक्त का शास्त्र का ज्ञान कम है, मध्यम भक्त। कनिष्ठ भक्त शास्त्र का ज्ञान है ही नहीं। कोई बात नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु एक श्लोक, ब्रह्म यमल क्या है? एक पांचरात्रि का शास्त्र है। रूप गोस्वामी ब्रह्म यमल श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र विधिम विना ऐकांति की हरे भक्ति उत्पाता यही कल्पते। भक्ति दिखते हैं लेकिन उत्पात का कारण बन सकते हैं। आगे शास्त्र के अनुसार सभी प्रवृत्ति में शास्त्र का आधार होना चाहिए। मंदिर का निर्माण, तिलक, कंतिमाला, ये सब पांचरात्र शास्त्र में है। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र, अगर उसका उपदेश का विरोध विचार तो उत्पात का कारण होते हैं। भक्ति शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। कहने का था, अभी कोई प्रचार कर रहे हैं विदेश में, भक्ति सबसे महिमापूर्ण है, शास्त्र से ज्यादा महिमापूर्ण भक्ति। ये क्या बोलते हैं, अपसिद्धांत है, अपसिद्धांत। कोई कोई कर रहे हैं, पीएचडी है ना, विद्वान। पीएचडी एक है ना जो इस्कान के बड़ी गुरुजी है, तिलक पहनना जरूरत नहीं, खंती माला जरूरत नहीं, चोटी रखना जरूरत नहीं। और भारतीय संस्कृति भौतिक है, यूरोपियन संस्कृति
चाइनीज संस्कृति, यही प्रभुपाद का उपदेश का विरोध प्रचार है। प्रभुपाद का एक शिष्य कर रहे हैं, दुख की बात है। सब शिष्य 100% गुरु का दीक्षा लिया, लेकिन बाद में अपना खुद का बनावटी विचार मन में आ जाते हैं। जैसे वृंदावन के सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं बांकी बिहारी, और उसके पश्चात इस्कॉन में, लेकिन अभी इस्कॉन नंबर 3 हो गया। प्रेम मंदिर नंबर 2 है। प्रेम मंदिर जाओ, एक भक्त भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। म्यूजियम, संग्रहालय, आरती के काल में यंत्र चालू करते हैं, डेंग डेंग बोंग बोंग, डेंग डेंग बोंग बोंग, जैसे यहाँ राम मंदिर कोई है नहीं। और उनके गुरुजी अनाचारी था, दुराचारी, और उसने अपने कुटुंबी जनों को सब शक्ति प्रदान किया शिष्य को ने, लेकिन उसका एक प्रधान शिष्य इस्कॉन भक्त था एक जमाने में, कीर्तन आनंद के शिष्य था। हाँ, हरे कृष्ण। अभी भी है, अभी भी बहुत प्रसिद्ध सन्यासी हो गया। हरे कृष्ण। भगवान सबको स्वतंत्रता, अनंत कोटि जीव गिनती नहीं कर सकते, सब अपना अपना स्वतंत्र विचार रखते ही है। लेकिन जब शास्त्र का विरोध प्रवृत्ति में लग जाते या विचार का परिवर्तन, तो फिर उनको कैसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आया टाइम पर।